নমস্কার, গোপা দাশগুপ্তকে আমাদের শোতে আজকে স্বাগত। নমস্কার। গোপা, তাহলে তোমার ছেলে, তোমার স্বামী ভয়ঙ্কর গর্বিত তো তোমাকে নিয়ে। নিশ্চয়ই। অ্যাকচুয়ালি আমি খুব একটা এটা নিয়ে ডিসকাশন করি না, তবে তুমি যখন কথাটা পারলে তখন বলি যে অফকোর্স আমার ছেলে তো ভীষণভাবে গর্বিত, নো ডাউট। কিন্তু আই বিলিভ কি আমার হাজবেন্ড যেখানে আছেন বা আমার বাবা যেখানে আছেন এখন, তারা নিশ্চয়ই সেখান থেকেই আমার জন্য গর্বিত, কেন কি তারা ফিজিক্যালি আজ আর আমার সাথে নেই কেউ। 2016 সেই বছরটি আমার জন্য বিশাল বিপর্যয় নিয়ে এসেছিল, কেন কি 2016-তে আমি আমার বাবাকে হারাই। मेरे फादर का डेथ के बाद विद इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 2 months माय फादर इन लॉ एक्सपायर्ड एंड उसके एग्जैक्टली अराउंड 4 months में आई लॉस्ट माय हस्बैंड एंड उसी साल मैंने मेरा जॉब छोड़ा था टू स्टार्ट माय बिजनेस एंड टू कम फुल टाइम टू माय बिजनेस, बिकॉज आई रिमेंबर कि मैंने डिसीजन लिया कि इट वाज आई थिंक सितंबर में 30 सितंबर आई थिंक मेरा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ था। आई स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माय बिजनेस एंड ठीक एक वीक के अंदर आई लॉस्ट माय हस्बैंड। So it was a very disaster. It was a huge disaster in my life. क्योंकि एक ही साथ तीन स्ट्रॉन्ग पिलर मेरे लाइफ से हट गए थे उस वक्त। তোমার ফিলিংসটা ঠিক সেই সময় কেমন ছিল? তখন কি তোমার মনে হচ্ছে যে আমি চাকরি ছেড়ে দেবো, বা আমি চাকরি ছেড়ে যে তুমি ব্যবসার মধ্যে এলে, যে ব্যবসা ছেড়ে দেবো, আবার চাকরি করব, বা ফ্যামিলির কাছে কলকাতায় ফেরত আসবো, এই ধরনের কিছু মনে হয়েছিল, নাকি মনে হচ্ছে যে এই পরিস্থিতিটাকেই নিয়ে আমি লড়ে এগিয়ে যাব? ঠিক কি ফিলিংস ছিল তোমার? আমি না তোমাকে একটা কথা বলি, আমি না এতটা মানে ফাইট করছি লাইফে, এই জিনিসটাকে এইভাবে দেখি না। মানে আমি না ওই ওয়ার্ডটাকে আমার লাইফে আসতেই দিইনি যে আমার অনেক প্রবলেম হয়ে গেছে এবং আমি ওটা খুব ফাইট করে বেরিয়ে এলাম, বা আমি খুব স্ট্রং হয়ে ডিল করলাম জিনিসটাকে, বা আমি খুব পাওয়ারফুল ভাবে ডিল করলাম না। আমার মনে হয় যে আমাকে ভগবান ওইটুকুনি কষ্ট দিচ্ছেন যেটুকুনি আমি সহ্য করতে পারবো, ওর বেশি দেবেন না, ঠিক আছে? যখনই ওরকম হলো না, আই উইল গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল যে আমার ছেলে, আমি সবসময় বলি যে স্টিল নাও আই টেল দ্যাট আই এম গডস ফেভারিট চাইল্ড। তো আমার যখন হাজবেন্ড মারা যান এবং তারপরে আমার ছেলে ওই সময় ক্লাস 6-এ পড়ে, তো আমার ছেলে আমায় ইয়ে করে বলেছিল যে আমি মানে বাচ্চাদের কি শেখায় আমরা, যে স্নান টান করে একবার ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়েও এবং থ্যাংক ইউ বলুন ঠাকুরকে। তো আমার ছেলে কমপ্লিটলি বন্ধ করে দিয়েছিল ঠাকুরের সামনে দাঁড়ানো। আচ্ছা, আমি কিন্তু ওকে ফোর্স করিনি, কেন ওটা ওর বিলিফ সিস্টেম, আমি ওটাকে ভেঙে ওটাকে তৈরি করতে পারি না, ওটা ওর নিজের থেকে আসা দরকার। এনাকে পুজো করতে হবে, এনাকে মানতে হবে, এটা কাউকে জোর করে করানো যায় না। একদম। তো আমি ওকে একদিন এমনি শুয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তুমি আর ঠাকুরের সামনে ইয়ে করো না, আগে দাঁড়িয়ে থ্যাংক ইউ বলতে, এটা তো ঠিক করছো না। তো একটু রেগেই আমায় বলেছিল যে মানে হি ইউজড আ ওয়ার্ড, आई विल टेल यू एग्जैक्ट वर्ड। उसने बोला था भगवान ने नाना जी और पापा को लेके नहीं गए, वो हमसे छीन लिया। तो आई अंडरस्टूड कि उसके अंदर क्या एंगर जमा हो गया है भगवान के अगेंस्ट, কতটা কষ্টটা পেয়েছে। तो उसके बाद उसने उस वक्त मुझे क्वेश्चन किया था कि आप हमेशा बोलते हो कि आप गॉड की फेवरेट चाइल्ड हो, तो गॉड के फेवरेट चाइल्ड को उन्होंने इतना तकलीफ क्यों दिया? तो मेरे लिए ना एक इजी वे ऑफ थिंकिंग क्या था कि शायद मैंने उस वक्त मेरे बेटे को वही रिप्लाई दिया था कि शायद आज मैं फेवरेट नहीं हूं उनकी, तुम फेवरेट हो। अच्छा, तुम फेवरेट चाइल्ड हो, इसलिए उनको तो एक बंदे को तो लेके जाना था लाइफ से तुम्हारे। उन्होंने तुम मम्मी से ज्यादा प्यार करते हो, उन्होंने इसलिए मुझे रख दिया और पापा को लेके गए। तो तुमको हर सिचुएशन में, मैंने वही एकदम सिंपल वे में जितना वो समझ सकता है क्लास 6 का बच्चा, कि तुमको वही चीज दिया जाता है जिससे तुमको ज्यादा हेल्प मिलेगा, जो चीज से तुमको ज्यादा आराम होगा, इसलिए तुम्हारी मम्मी को रखे उन्होंने और पापा को लेके गए। और पापा ने जितने दिन भी हमारे साथ रह के गए, ही हैज
we have lived the best time of our life. একদম So we should not blame anybody for anything. उस वक्त उसने नहीं समझा था वो बात, वो फिर भी नाराज था स्वाभाविक। वो चीजों से एंड ऑल. बट आई विल टेल यू, इफ समडे यू मीट माय सन, ऑफ कोर्स वी विल मीट, उस दिन यू विल अंडरस्टैंड कि भगवान ने शायद उसको और बेहतर इंसान बनाने के लिए शायद उसके लाइफ में ये चैलेंज लाया था. क्योंकि आज मेरे बेटे को अगर आप मिलोगे तो आई फाइंड कि वो जो सिचुएशन था, वो जो चैलेंजेस हमने फेस किया ना, दैट हैज मेड हिम अ बेटर पर्सन. दैट हैज मेड हिम, नहीं तो शायद बाकी बच्चों के जैसा ही वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता. आज वो स्ट्रांग है, आज वो खुद डिसीजन मेकर है. ही इज एन एक्सेलेंट कुक. ओके, ही द वे ही टेक्स केयर ऑफ पीपल, ही इज वेरी एम्पैथेटिक. ओके, तो ये सारी चीज, ये गुण जो है ना, ये शायद इसीलिए उसके अंदर आया बिकॉज उसने खुद वो सारी चीजें उसे गुजर चुका है. एकदम ही. तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज द रीजन. तो आज मुझे जब कोई पूछता है ना, अरे यू आर वेरी स्ट्रांग, तुम्हें वो स्ट्रेंथ था इसलिए तुम, व्हाट वाज द ऑप्शन रनिपा आई हैड दैट टाइम? কিছুই ছিল না. तो अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं था, अगर आपका पीठ दीवार पे टिक चुका है, अभी आप किधर जाओगे? इट्स नेचुरल दैट आप आगे आने का ट्राई करोगे. যেতেই হবে. And that is what I did. I did what happens in the nature. अगर आप वहां पे टूट जाते हो ना, दीवार पे होने के बाद टिक के आप बैठ जाते हो, that is not nature. Nature doesn't do that. एक अगर रिवर बह के जाता है, उसको कहीं पे टकराता है, क्या वो रिवर वहीं पे थम जाता है कि मैं टकरा गई? It will find its way. It will find its way. And I am living my life very simple way. मुझे लगता है मुझे जो दिखता है आगे आजू बाजू, I just behave that way. একটা মেয়ে, একটা মা, সে তার জীবনে কি কি দেখেনি। এবার একটু তোমার কাজের ব্যাপারে মন দিই। আমরা হয়তো একটু ইমোশনাল আমি হয়ে যাচ্ছি, মানে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হচ্ছি, কিছু করবার নেই, কিন্তু এবার একটু কাজের কথায় চলে আসি। কারণ গোপা ভীষণ কাজের মেয়ে, মানে কাজের মধ্যে থাকতেই ভালোবাসে। দেখতেই পাচ্ছেন যে জীবনের যাই হয়ে যাক, একটার পর একটা ওঠা পড়া চড়া নাবা প্রত্যেকটা চলেছে, একটার পর একটা চলেছে, কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে ফোকাস কিন্তু হারাননি। আর যে মানুষের ফোকাস থাকে, যে মানুষ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান, ইউনিভার্সকে ধন্যবাদ জানান, সেই মানুষকে কিছু বলবার নেই। মানে সে জীবনে সাকসেস পাবেই, আপনিও পাবেন। কিভাবে পাবেন একটা একটা করে টিপস জানবো। গোপা, একটু তোমার বিজনেসের যে মোটো, মানে কিভাবে তোমার এই বিজনেসের সূত্রপাত হচ্ছে, কিভাবে এই বিজনেসের একটার পর একটা স্টেপ যাচ্ছে, একটু ডিটেল শুনবো। 2016-তে না, আমি যেরকম জানালাম যে আমি চাকরি ছেড়ে ফুল টাইম বিজনেসে আসার डिसीजन नहीं। এবং अगर मैं उस वक्त का बात करूं, उस वक्त आई वाज डूइंग डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज अ इंडस्ट्री वेयर यू आर वर्किंग विद पीपल, लोगों के साथ काम करना है। लोग ही, आपके कॉन्टैक्ट्स ही आपका इन्वेस्टमेंट है। ओके, वहाँ पे पैसों का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वहाँ पे आपका फ्रेंड्स जो है, आपके कॉन्टैक्ट्स जो है, दे आर द मेन पिलर इन योर बिजनेस। तो कहीं पे तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि कुछ चीजें शायद मुझ में है जो मेरे पापा ने रियलाइज किया था, जो पापा ने शायद उस वक्त, मैं जब छोटी थी, ही रियलाइज दैट आई हैड दोस पोटेंशियल, एंड दैट वाज द रीजन वो चाहते थे कि मैं बिजनेस करूं। एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद और एक चीज बहुत अच्छे से समझा कि दिस इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद पीपल। एंड मैं क्या बोलूं, मतलब जब आप बिजनेस करते हो, इन अ वे एक्चुअली आप सोशल वर्क कर रहे हो। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। जॉब में क्या होता है, लाइक व्हेन यू आर इन डायरेक्ट सेलिंग, जॉब में नहीं आते हैं हम, डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं डायरेक्टली। आई एम वेरी, एक्चुअली ये मेरा फेवरेट टॉपिक है बिकॉज आई लव माई बिजनेस, आई लव दिस इंडस्ट्री, एंड आई कैन जस्ट स्पीक फॉर आवर्स ऑन दिस। हमारे आसपास अगर थोड़ा सा अगर हम सोचते हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, क्या वो उतना ही एडुकेटेड है? क्या उनको भी इजीली जॉब मिल सकता है? क्या उनको भी जॉब मिल सकता है? आई एम नॉट टेलिंग कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का जॉब। आज के दुनिया में 5,000, 10,000, 20,000 का जॉब इज नॉट अ जॉब। वो सिर्फ आप इसलिए कर रहे हो ताकि घर पे हेल्प हो जाए। बट अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, अगर आपको लगता है कि यू वांट टू डू समथिंग बिग, यू वांट टू मेक मनी एक्चुअली,
तो आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हाउ विल आई एक्सप्लेन, अगर इजी वे में मैं एक्सप्लेन करूं कि अगर मैं क्लास 10 पास हूं तो क्या मुझे जॉब मिल सकता है? এখন যা পরিস্থিতি তাতে কোনোভাবেই নয়। इम्पॉसिबल, राइट? अगर मुझे किसी ने जॉब दे भी दिया, इट इज मोर लाइक कि आपने उसको दया, आपने उस पे रहम खाया, इसलिए आपने उसको रख लिया है काम पे, बट दैट मे नॉट बी अ गुड जॉब। না ओके, अब ये जो क्लास 10 पास्ट है, अगर मैं इसको स्किल्स सिखाऊं, अच्छा अगर मैं उसको सपोज मैं उसको कारपेंट्री सिखाती हूँ, देन ही कैन मेक मनी। ओके, क्या हर बंदा कारपेंट्री सीख पाएगा? नहीं। बट अगर मैं बोलूं कि ऐसे काफी सारे स्किल्स हैं जो स्किल्स आप बहुत आसानी से सीख सकते हो घर पे बैठ के, उसके लिए ना आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ना आपका पहले का एक्सपीरियंस की जरूरत है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपके फैमिली में किसी को उसकी एक्सपीरियंस है। अच्छा ओके, अभी ये स्किल अगर मुझे लोगों तक पहुंचाना है, मैं पर्सनली कितने लोगों तक पहुंच पाऊंगी? जितने मेरे थोड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, চারিদিকে যে কজন আছে যে কজন, অল্প করে। कुछ दोस्त होंगे, कुछ रिलेटिव होंगे, उन तक ही मैं पहुंच पाऊंगी, उससे ज्यादा तो मैं पहुंच नहीं सकती। डायरेक्ट सेलिंग विल हेल्प यू टू रीच आउट टू पीपल। একদম कैसे? डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, मैं खुद काम कर रही हूँ, मैं मेरे टीम के साथ काम कर रही हूँ, मैं मेरा इनकम तो आ ही रहा है, साथ साथ टीमेर का। मैं लोगों के इनकम के लिए हम काम कर रहे हैं। একদম ओके, डायरेक्ट सेलिंग हेल्प्स कि यू रीच आउट टू पीपल एंड यू हेल्प देम टू अर्न। अच्छा दैट इज द रीजन मैंने आप बोला कि इट इज नॉट लेस देन अ सोशल वर्क। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट लेस देन अ सोशल वर्क। आप खुद भी इनकम करते हो एंड ऑल, और आप लोगों के घर तक इनकम पहुंचा के भी देते हो क्योंकि आप उनके साथ काम स्टार्ट करते हो। ठीक This was why I chose direct selling. And in the year 2016, I was fully into direct selling. And then during lockdown, I decided that we should come up with our own company. अच्छा Where we will not be selling products. हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट अगर मैं सेल करती हूँ, सपोज मैंने आईफोन बेचा, आईफोन का अभी मार्केट प्राइस है 1,80,000। मैंने कहा कि मेरा कंपनी आपको 1,30,000 में देगा। अच्छा कोई भी इंसान भाग के आएगा क्योंकि 50,000 सेव हो रहा है करके। बट द थिंग इज, द मोमेंट मैं ये पैक से निकालती हूँ, क्या इसका प्राइस वही मिलेगा? ना, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट द मोमेंट यू ओपन इट, उसका डिप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है। कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको खोलते ही उसका डिप्रिसिएशन स्टार्ट होता है। आई वॉज लुकिंग फॉर सम प्रोडक्ट्स जो जितना खोलते जाओगे, जितना एक्सप्लोर करोगे, it will appreciate, and there is nothing else than education which appreciates with every day. Start your own business. ना ही मैं डिमीन करना चाहती हूँ जॉब को, बट नौकरी इज ऑलवेज लाइक, मजाक में हम बोलते हैं कि नौकरी इज ऑलवेज फॉर नौकर। ओके, नौकर से नौकरी आती है। द थिंग इज, यू विल ऑलवेज वर्क फॉर समबडी। आप किसी के लिए काम करते रहो। जब काम करना ही है तो खुद के लिए क्यों ना काम? একদমই।